Bismillahirrahmanirrahim. So students, let's start our today's lecture. Our today's lecture is from our new chapter. Today we have to start a new chapter which is unit 6 and most probably it's our first lecture. So let's find out what we have to learn today. So today we have to learn a SLO from the competency of grammar. And what is that SLO? That SLO is use all type of tenses correctly in speech and writing. So students, our SLO's demand is actually to use all types of tenses. So before using all types of tenses, you have to know about what is meant by the tenses and what are the different types of tenses and what are the structures which are followed by each type of tense. So because this SLO is very much vast, so what we have to do, we divide this SLO into three major categories. So tenses are actually 12, but there are three major categories: past, present and future. Each of these three types carries four types of tenses, and in each of the chapter we address one of them. So in this chapter we will focus on the present tense and the types of present tense, like the present simple tense, present continuous tense, present perfect and present perfect continuous. So let's go further. Here is the vertical linkage. So now we have a brainstorming activity. So think about your daily routine. Write down 5 to 7 activities you do regularly. Use the present simple tense to describe these activities. So students, it's time to write 3 to 5 sentences about your daily routine, about anything which you do regularly. So kindly do it quickly. इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि आपको क्या हल्का फुल्का भी प्रेजेंट टेंस के बारे में पता है या नहीं पता. सो यू हैव टू यूज simple present tense and you have to write about 3 to 4 things which you do regularly. Like we can say that कि मैं रोज खाना खाता हूं, या इस तरह का कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो आप क्या करते हैं, रोज करते हैं. what you have to do, you just have to write, because demand of our SLO is to use all types of tenses, and we use all types of tenses most of the time in the writing and in the spoken form as well. So is there anybody who can unmute your mic and tell me about anything in the past simple present tense which he do regularly or she do? Yes, the JTN school. I wake up early in the morning. So you wake up early in the morning. Okay, is there any? I go to school daily. So you go to school daily. Okay. Yes, from the Renaissance school. Is there any example? I wake up early in the morning and I say my Fajr prayers, and then I teeth my brush and I daily go to school. Okay, mashallah. Yes, Al Said school. I eat food, I do work. Okay, you do work and you do eat food. Okay, is there any example? Central Executive School, Executive School? Yes. Sir, we offer prayer daily. So you offer prayer daily, or okay. So these all are actually the different forms or different expressions which belongs to present simple tense. So present simple tense is our today's topic, but before going to present simple tense, we firstly have to understand the concept of the tense. What is meant by a tense? What is meant by a tense? Is there anybody who can tell me what is meant by a tense? Yes, students, quickly. Yes, the JTN school. Sir, tense is a time. So tense means times. Yes, is there anybody? Zamana. जमाना. बहुत अच्छे. तो बच्चों टेंस से मुराद क्या है? जमाना. अब हमारे पास बुनियादी तौर पे जो टेंसेस हैं वो किससे कंसर्न्ड होते हैं? वर्ब से. टेंस किसे बोलते हैं? जमाने को. और जमाने कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के. आज का जमाना, प्रेजेंट टाइम, गुजरा हुआ जमाना, पास्ट टाइम. इसी तरह जो आने वाला जमाना है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टाइम्स. So when we write a sentence or when we use a sentence, actually we talk about some certain action. We talk about some certain action, and that action can be happen in the past or can be happen in the present
and can be happen in the future. So most of the time, two things in a sentence tell us about the tense. And what are those two things? Both the things are actually the verb. तो हमें टेंस कौन सा है, एक एक्शन किस जमाने में हुआ, ये एक्शन खुद बताएगा. वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स, और यही एक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो किस जमाने में हुआ है. Either that action is done in the present time, either that action was happen in the past time, or that action will happen in the future times. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको क्या पता चल जाता है कि ये एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट टाइम में. इसी तरह अगर आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एक्शन कब हुआ है, पास्ट टाइम में. इसी तरह अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको पता चल जाता है कि ये परफेक्ट एक्शन है. तो हमें जो वर्ब है वो बताता है, एक्शन वर्ड्स खुद बताते हैं कि वो कब हुए थे. सो दो चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं किसको, टेंस को. सबसे पहले आपका जो वर्ब है वो इंडिकेट करता है. दूसरे नंबर के ऊपर वर्ब की दो टाइप्स हैं. आप सब जानते हैं कि वर्ब की प्राइमरीली हम वर्ब को दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं. एंड व्हाट आर दीज टू कैटेगरीज, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, टेंस के बारे में, कि एक फिक्रा या एक एक्शन किस जमाने में हुआ. इसका पता हमें किससे चलेगा, सबसे पहले मेन वर्ब से चलेगा और दूसरे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब से चलेगा. यानी अगर ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर है तो हमें पता चल जाएगा कि पास्ट है, अगर शैल है तो हमें पता चल जाएगा फ्यूचर है, अगर इज़म आ रहा है या है ही नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है. इसी तरह अगर डू डज है तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव है. सो दीज आर दी थिंग्स. तो एक्चुअली टेंसेस आर कंसर्न्ड विद दी, टेंसेस आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद दी वर्ब. तो वर्ब ही यानी एक्शन ही किस जमाने में हुआ, इसी के बारे में कौन बताता है, हमें टेंसेस बताते हैं. और एक्शन खुद बताता है कि वो किस जमाने में हुआ, किसकी मदद से, अपनी डिफरेंट फॉर्म्स की मदद से और डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस द प्रेजेंट, एंड इन द प्रेजेंट वी हैव द फोर कैटेगरीज, द प्रेजेंट सिंपल टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, and the present perfect continuous tense. So today we will discuss the present simple tense. So let's find out what is meant by the present simple tense. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि present simple tense को, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह के एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक खास टेंस एक खास तरह के एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है. यानी अगर कोई ऐसा एक्शन है जो आज की डेट पे हो रहा है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस. जैसे मिसाल के तौर पे आइए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, टू गिव इंस्ट्रक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं किस लिए, हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकें या डायरेक्शन दे सकें. लेट्स सपोज गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर और टर्न ऑन द फैन और लेफ्ट द क्लास. सो दीज ऑल आर एक्चुअली द एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो हम असल में यूजेस देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कहां इस्तेमाल होता है. कहां इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए, किसी को रास्ता बताना है, किसी को कोई काम कहना है, कोई हुक्म देना है, तो वो सब का सब किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा. एंड वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डू दीज एक्शन. क्योंकि आप जब भी किसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे या किसी को डायरेक्शन देंगे तो वो एट द सेम टाइम देंगे, आप प्रेजेंट टाइम में देंगे. आप मौजूदा जमाने के अंदर किसी को डायरेक्ट करेंगे या इंस्ट्रक्ट करेंगे. तो चूंकि आप मौजूदा जमाने में ही किसी को गाइड करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसलिए टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का टेंस. इसी तरह दूसरा यूज इसका क्या हो सकता है, द सेकंड यूज इज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर. आप क्या करें, आप किसी फिक्स्ड अरेंजमेंट को बताएं. जैसे मिसाल के तौर पे योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM, आपका पेपर 9 बजे शुरू होगा. योर क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM. तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो क्या हो, मतलब जिसमें हम बात करें किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि फिक्स है और वो तयशुदा है,
तो तब भी हम क्या यूज कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट टेंस एक्चुअली हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप सब ने अभी बात की किन के बारे में, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में, कि हैबिचुअल एक्शन क्या है, ऐसा एक्शन जो आप रूटीन बेस पे करते हैं, जो आप डेली करते हैं। जैसे आपने सोने की बात की, खाने की बात की, स्कूल जाने की बात की, नमाज पढ़ने की बात की, तो ये सारे एक्चुअली क्या है, हैबिचुअल एक्शन। और हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात किस में होती है, प्रेजेंट के अंदर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट क्या है, एक हैबिचुअल थिंग है, यू डू ब्रेकफास्ट डेली, दैट्स व्हाई व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट व्हाट यू यूज द प्रेजेंट टेंस। एंड इन द सेम लाइन शी ओनली ईट्स फिश, it's also a habitual action. Eating fish or not eating fish is a habit, that's why he or she use the present tense. They watch television regularly, so it's also a habitual action, that's why we use the present tense. So most of the time the habitual actions or those actions which are repeated are expressed or demonstrated in the present tense, in the simple present tense. Let's pause for repeated actions or events. So all those actions which are also repeats regularly or repeats with a particular passage of time are also expressed in present simple tense. Like we watch the bus every morning, so that action which happens regularly, which happens simultaneously, which happens after a particular period of time, are also demonstrated or expressed in the present simple tense. Like it rains every afternoon in the hot season, they drive to Monaco every summer. So all these actions or events which are regular or repeated are also expressed in present simple tense. So present simple tense is used to present habitual actions, used to present the routine actions, the repeated events, and for the general truths. Water freezes at 0 degree. The earth revolves around the sun. Her mother is, we can say that, Peruvian. And also when we said that God is one, or these types of truths which are general truth, or we can say that universal truths, are also in the present tense, because universal truths or general truths never got old. That's why, because they are at the same time also a truth. So when we talk about anything which is in the present, which is in the, we can say that, कि मौजूदा जमाने में है, तो उसके बारे में हम बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो बच्चों मुझे यहां तक बताएं कि आपको समझ आया कि किस किस तरह के एक्शंस, किस किस तरह की चीजों के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जिसको समझ आ गया वो थम्स अप कर दे। यस स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये नहीं याद रखना कि प्रेजेंट टेंस के आखिर पे ता है, ती है, ते है, आता है, नहीं। यू जस्ट हैव टू कंसीडर ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल है, ऐसा एक्शन जो रूटीन में होता है, ऐसा एक्शन जो रिपीटेड है, ऐसी बात जिसमें आप क्या करते हैं, किसी जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। हर वो बात, हर वो चीज किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी। और अगर वो प्रेजेंट टेंस में नहीं है, इसका मतलब है आपका फिक्रा गलत है, आपको अपने फिक्रे को रिकंसीडर करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? So you have to go with the logic, you don't have to go with the formula. Is that clear students? Yes. Okay, so let's look at the structure of present simple tense. So here firstly the affirmative sentences, और जिसे हम simple sentences भी कहते हैं, कि जिसमें नेगेटिव नहीं होता या कुछ इस तरह का नहीं होता। So what we have to do, we have a subject plus base form of verb. So what is meant by the base form of verb? The first form of verb, which is the most regular form of the verb, and then a object, or there can be a complement. तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या कोई बता सकता है क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनीबॉडी जो ये बता सके कि क्या इस स्ट्रक्चर में कोई कमी तो नहीं है? ओके, सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो किस किस को लगता है
कि ये मुकम्मल बात है जी। यस द JTN स्कूल। सर एफर्मेटिव में एस और ईएस का इजाफा। एस और ईएस का इजाफा होता है। बहुत अच्छे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किसका इजाफा होगा? एस और ईएस। या ईएस का। लेकिन ये एस और ईएस का इजाफा सिर्फ पर्टिकुलर केसेस में होगा। किन पर्टिकुलर केसेस में? एस और ईएस विल बी एडेड टू द सब्जेक्ट, टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट when the subject with the verb when the subject is a third person pronoun। जब आपके पास थर्ड पर्सन नैरेटर होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप एस या एस का इजाफा करेंगे। नैरेटर कौन होता है? बात करने वाला, कहानी सुनाने वाला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर समझते हैं जो एक हो सर। जी, जो एक हो, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर क्या होता है? एस या एस का इजाफा होता है। और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो सकता है? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। दैट बॉय इज गोइंग टू, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ नैरेटर, द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन होते हैं? कोई ऐसे, वो तमाम ऐसे कैरेक्टर जो क्या हो, जो पार्ट ऑफ द स्टोरी हो, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन नैरेटर है। जैसे मिसाल के तौर पे नैरेटिव कहते हैं स्टोरी को, नैरेटर कहते हैं बात सुनाने वाले को, कहानी सुनाने वाले को। तो टेंसेस में चूंकि हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं? हम किसी ना किसी वाक्य, किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी बात को नरेट कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज आप में से थर्स्टी क्रो किस किसने पढ़ रखी है? हाथ खड़ा करो। थर्स्टी क्रो किस किसने पढ़ रखी है? ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी होती है। अब उसके अंदर उस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, या लेट्स सपोज फार्मर एंड हिज 3 सन्स अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो उसमें जो फार्मर है, जो तीनों सन है, क्योंकि वो क्या है? दे आर एक्चुअली द डायरेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, दैट्स व्हाई दे आर द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि वो किसी इवेंट में शामिल थे, वो किसी एक्शन में शामिल थे। तो वो कैरेक्टर्स जो किसी एक्शन में शामिल हों और अगर वो खुद कोई कहानी सुनाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो फर्स्ट पर्सन नैरेटर कहलाते हैं। कि उनसे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि उन पे खुद बीता है ये सब कुछ, उन्होंने वो सब कुछ खुद एक्सपीरियंस किया है। यानी अगर वो किसान या किसान का कोई बेटा कहानी सुनाएगा तो वो क्या कहेगा कि आई थिंक दैट माई फादर सेड टू मी, तो उसका ये अंदाज होगा। यानी वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा, वो आई या वही यूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद पार्ट ऑफ द स्टोरी थे, दैट्स व्हाई। इसी तरह अगर किसी बंदे ने, मतलब जो उस फर्स्ट पर्सन का एड्रेसर होगा, जिसको वो फर्स्ट पर्सन बात कहेगा, यू जिसे कहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। लेकिन ना हमने वो फार्मर एंड हिज 3 सन्स वाली कहानी किसी ऐसे बंदे से सुनी जो खुद पार्ट ऑफ द स्टोरी था, ना किसी ऐसे से सुनी जिसको किसान या उसके किसी बेटे ने सुनाई। हमने तो किसी और ही बंदे से सुनी, हमने तो किसी किताब में पढ़ी, किसी खुलासे में पढ़ी। ऐसा ही है ना बच्चों? या किसी को किसान या उसके बेटे ने सुनाई है कोई ऐसा? नहीं, मतलब हमने किसी किताब में पढ़ी। तो कोई ऐसा शख्स जो ना ही पार्ट ऑफ द स्टोरी हो, पार्ट ऑफ द इवेंट हो, ना ही उसको किसी उस बंदे ने बात बताई हो जो पार्ट ऑफ द स्टोरी या पार्ट ऑफ द इवेंट था, वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड पर्सन नैरेटर क्या होता है? पता चल गया? यानी कोई ऐसा बात सुनाए, कोई ऐसा कहानी सुनाए जो कि ना ही कहानी का हिस्सा था और ना ही कहानी के किसी किरदार ने उसको बात सुनाई है। जैसे हम क्या कहते हैं? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर। तो वो जो वंस अपॉन अ टाइम जो कह रहा है, एक दफा का जिक्र था कि कोई किसान था और उसके 3 बेटे थे। तो वो जो एक दफा का जिक्र वाला सुना रहा है, ना वो पार्ट ऑफ द स्टोरी था और ना ही वो क्या था, ना ही वो एड्रेसर ऑफ द कैरेक्टर था। दैट्स व्हाई इट्स द थर्ड पर्सन। तो हर वो शख्स जो पार्ट ऑफ द स्टोरी ना हो, किसी इवेंट, किसी वाक्य का हिस्सा ना हो, बल्कि आउटसाइड द इवेंट हो, वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नैरेटर क्या होता है? पता चल गया आप सबको? जी बच्चों, किस किस को पता चल गया? बहुत अच्छे। तो अब थर्ड पर्सन नैरेटर्स 2 तरह के हो सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कोई एक अकेला बंदा भी थर्ड पर्सन हो सकता है, या बहुत सारे लोग मिलके भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं।
ऐसा ही है ना। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे मिसाल के तौर पे ही, शी या इट, कि भाई वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, ये चीज पढ़ी है, या मतलब फलां लड़का ऐसा है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, नैरेटर, बात सुनाने वाला या बात करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। आई वी के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, यू के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, दे के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो ना ही फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, ना सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, ना थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगेगा। किसके साथ एस या ईएस लगेगा? सिर्फ ही, शी, इट या किसी के नाम, यानी जो कोई थर्ड पर्सन के तौर पे बात करेगा उसके नाम के साथ क्या लगेगा? उस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। बाकी किसी भी केस में एस या ईएस नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स। अब लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। अब क्या इसकी एग्जांपल हो सकती है? मुझे जरा थोड़ी सी जगह बनाने दें, फिर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती हैं, आइए देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि वो स्कूल गया, मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं कि ही रन्स, ही रन्स। अब ये एक शॉर्टेस्ट सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और सिर्फ वर्ब है, और यहां वर्ब के साथ क्या लगा? एस लगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं क्या कहूं, आई गो टू स्कूल, तो क्या लगता है? क्या ये फिक्रा ठीक है? यहां पे वर्ब है गो, और हमने गो के साथ ना एस लगाया ना ई एस लगाया। किस किस बच्चे को लगता है ये फिक्रा ठीक है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, तो सबको लगता है ये फिक्रा ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, अब ये फिक्रा किस किस बच्चे को लगता है ठीक है? Who thinks that this sentence is right? जी, वो थम्स अप कर सकता है जिसको लगता है ये फिक्रा ठीक है। ही गो टू स्कूल नहीं ठीक, ही गोज टू स्कूल होगा। क्यों? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये इसका फॉर्मूला है कि अगर थर्ड पर्सन है तो एस एस लगेगा, और अगर क्या है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या कुछ भी और तो कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो सिंपल प्रेजेंट के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? ये सब क्लियर है? सब क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म द सिंपल प्रेजेंट इनटू द नेगेटिव? सो व्हाट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स जब हम उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेट्स सपोज हमने क्या लिखा था? ही गोज टू स्कूल। सो व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, व्हाट इट विल बी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद क्या आएगा? डू डज। तो डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? सो स्टूडेंट्स डज विद गो टू दी थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा और बाकी सब के साथ डू लगेगा। यानी वही ही, शी और इट के साथ क्या लगेगा? या किसी का नाम है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। सो व्हाट इज देयर? हियर इज ही, दैट्स व्हाई वी यूज डज। नाउ what we have to do? We have to add the negation. हमें not लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। Now it's time for the first form of verb. तो यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है एस या ईएस के बगैर। तो हम क्या लगाएंगे? गोज क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। तो इसका ईएस किधर गया? इसका ईएस डू के साथ लग गया। दैट्स व्हाई हम नेगेटिव के अंदर
एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाते और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्या आपको बात समझ आई? वी जस्ट हैव टू ऐड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो साइन ऑफ निगेशन है, जो नॉट है, वो किसके साथ आएगा? वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में तो इज एम आर का यूज नहीं होता, वाज वर का यूज नहीं होता, किसी भी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट के अंदर नहीं आता। जब हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड one auxiliary verb which is do and does, and then we add not, and then the first form of verb, and then the object. So students, is that clear? Yes students. Okay, so let's go to the interrogative transformation of the simple present tense. तो अब इसी फिक्रे को हमने इंट्रोगेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? तो आइए जरा देखते हैं कि क्या होगा और किस तरह से होगा। सो स्टूडेंट्स, जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको डू डज सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कहां पे लगना था? डू डज सब्जेक्ट के बाद। तो इसको हमने कहां पे ले आना है? सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले जब डू डज लाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? डज ही गो टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, this is actually the interrogative transformation. It's very simple कि आपको सब्जेक्ट से पहले do does लगाना है और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज अगर हमने इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमारा नॉट किधर लगेगा? यहां पे नॉट लग जाएगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल? So students, this is the interrogative form. So is that clear? What we have to do in interrogative transformation, ये हमेशा एक असूल याद रख लें, जितने भी tenses हैं, in all the tenses, when we want to make negative, you have to add not after the auxiliary verb, and when you want to make interrogative, what you have to do, you have to bring the auxiliary verb before the subject, and the sentence will be the इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट पे आपने क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, तीनों तरह की बातें पता चल गई हैं। यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आई थिंक, डू आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, he thinks, does he think, he does not think. So there are a number of examples जिन्हें आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक प्रैक्टिस है, एक्टिविटी है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इसको क्लास में नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपके इंस्ट्रक्टर्स को कहूंगा कि आपकी ये एक्टिविटी आपकी किताब में दर्ज है, आप इसे जरूर कीजिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रीड दिस न्यूज आर्टिकल, और जहां जहां आपने मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के एतबार से आपने क्या लगाना है, मतलब आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स को ऐड करना है। सो यूज योर नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक ऑफ दिस आर्टिकल। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। सो स्टूडेंट्स, here is the same thing about the s and es. तो es किसके साथ लगेगा? es उसके साथ लगेगा जिसका इख्तिताम, जिन लफ्जों का इख्तिताम sh, ch, s, x या z पे होगा, उनके साथ क्या लगेगा? es लगेगा। तो ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम इनके अलावा किसी भी अल्फाबेट पे होगा, उनके साथ s लगेगा, और es किसके साथ लगेगा? जैसे वॉश, sh आया तो वॉशेस हो गया, S आया तो ड्रेसेस हो गया, Z आया तो बसेस हो गया, टीच यानी CH आया तो टीचेस हो गया। तो ES किनके साथ लगेगा? सिर्फ इनके साथ लगेगा। और इसी तरह अगर Y है किसी के एंड पे तो हम क्या कर देंगे? उसको I बना देंगे और फिर ES लगा देंगे। जैसे कैरी को हमने क्या कर दिया? कैरीज। कॉपी को क्या कर दिया? कॉपी। स्टडी को क्या कर दिया? स्टडीज। तो Y को I से रिप्लेस करके फिर ES लगाएंगे। तो इज दैट क्लियर कि S कहां लगना है और ES कहां लगना है? जी स्टूडेंट्स, क्या सबको पता चल गया? जी स्टूडेंट्स, ओके, बहुत अच्छे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक वर्कशीट है, एक ब्रीफ सी, आपने सिर्फ इनके साथ S या ES लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट के अंदर बच्चों की S या ES की ही गलती होती है। सो हियर इज एन अदर सिमुलेशन जिसको आप देख के फर्दर प्रेजेंट सिंपल की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वर्कशीट भी साथ अटैच है, आप सब इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आपका जो नॉलेज है प्रेजेंट सिंपल के बारे में वो फर्दर डेवलप होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन?
Yes, students. Is there any question about the tense, about the present simple tense, the three forms of present simple tense? Yes, students. The usage of S and ES. If there is any question, you can unmute yourself. Yes, the Central Fatima campus. आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना है? जी बच्चों, सब क्लियर है? बहुत अच्छे. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अगर कोई इश्यू हो, कोई मसला हो तो वर्कशीट अटेम्प्ट करें. आप मुझसे कल भी पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.